امام مالک 179 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس آیت قرآنی کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے انہوں نے فرمایا معاشر کے دن کی طرف امت کی توجہ دلا کر کے فَمَا كَانَ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَهُوَ الْيَوْمَ دِينٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَنْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِينًا۔ جو اس دن عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو دین قرار پا چکا تھا وہی امام مالک کے زمانے میں بھی دین ہو سکتا ہے، اور جو اس دن دین نہیں تھا وہ امام مالک کے زمانے میں بھی دین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے شروع سے ہی دور رسالت امام سے ہی وہ راستہ چنا جو صحیح اسلام کا تھا، سچے اسلام کا تھا، جس کی بنیاد توحید پر تھی، جس کی بنیاد علم پر تھی، جس کی بنیاد قال اللہ پر تھی، جس کی بنیاد قال رسول اللہ پر تھی، جس کی بنیاد صحابہ کے فہم پر تھی، جس کی بنیاد کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے پر تھی۔ تب جا کر کے وہ صحابہ ایک چھوٹی سی مدت میں اقوام عالم پر غالب آ گئے، لیکن سوا کا عرب یہ کیوں غفران کا غفائے سائل بن گئے؟ اس لیے کہ یہ اس اصل سرچشمے سے کٹ گئے، انہوں نے گندا پانی پینا شروع کر دیا، تو جسم میں صحت اور توانائی کہاں رہے گی؟ کاش یہ وہی پیور قال اللہ اور قال رسول اللہ سنیں، سنائیں، مانیں، عملائیں اور اپنی زندگی میں داخل کر دیں۔ قرآن نے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صاحب کو آپ اعلان کر دیجئے میری جو راہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتی ہے، اور ہاں اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی پگڈنیاں ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شیطان، ان میں سے ہر پگڈنی پر ایک شیطان کھڑا ہے جو دائی کا لباس پہن کر کے، جو دائی کا لباس پہن کر کے، اس سے بڑا عالمیہ کیا ہوگا؟ اور لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں نے خراب کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں دائیوں نے، ہم تو دین بادار بنتے لیکن کوئی مولوی آتا ہے وہ کوئی بات کر دیتا ہے، وہ دوسرا آتا ہے وہ دوسری بات کہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، ہم اسی پر دین کا چورن بیچتے ہیں۔ سونا خریدیں گے پیور، دوائی لائیں گے پیور، گھر کا میٹیریل لائیں گے پیور، اس میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ مارکیٹ کا دھوکے باز من غشنا فلیس منا، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، وہاں آپ تحقیق کرتے ہیں، وہاں آپ تصبت کرتے ہیں، لیکن یہ دین کا معاملہ آپ نے اتنا ہلکے کیسے لیا ہے؟ کوئی پگڑی پہن لے، داڑھی لمبی کر دے، پاجامے سے اوپر، ٹکنے سے اوپر پاجامہ باندھنا شروع کر دے، اور آپ بیٹھے اس کو دین کے فتوے پوچھ لیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال وأن هذا صراطي مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة،
ولا إمارة إلا بطاعة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. معزز امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، سٹیج کی زینت ہمارا ضلع جمعیت یا صوبائی جمعیت کرناٹک کے ذمہ داران اور مقامی علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ عظیم الشان ندائے قرآن و حدیث کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صبح 10 بجے سے اب تک امت کے موثوق اور معتمد فقہ علماء کرام نے قرآن و سنت کے مختلف گوشوں کو، مختلف موضوعات کو یہاں پر اجاگر کیا، اور آپ سب حضرات ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوئے. ہم امید رکھیں گے اور گزارش بھی کریں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ عمل کر بیٹھے ان نصائح پر جو انہیں پیش کی گئی تو یہ ان کے لیے بہتر رہے گا. اور فتنوں کے دور میں، افتراق اور انتشار کے زمانے میں یہ ان کی ثابت قدمی کے لیے بہتر رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو توحید و سنت کی شاہراہ پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قافلہ حق، اس منہج سلف کی حامل جماعت اہل حدیث کے ساتھ وابستہ رہنے اور دین اور اسلام کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا مختلف علماء کی زبانی، تو اب جو اس کا خلاصہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے جو شیر پنجاب فاتح قادیان شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ الامرتسری آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اولین ناظم اعلیٰ اپنے ہفتہ روزہ اخبار اہل حدیث کے سرورق پر ہمیشہ لکھا کرتے تھے: اصل دین آمد کلام اللہ داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داشتن. یہی کتاب اللہ اور یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا مصدر اور ہمارے دینی تعلیمات کا سورس اور دین حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے. اور یہی چھوڑ کر کے ہمارے اندر گئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرمایا تارکتکم ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعد ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے
तब तक गुमराही तुम्हारे नजदीक भी नहीं भटकेगी। पता चला कि वो दो चीजें जो हमारी हिदायत की जामिन थी और जिनसे दूरी और एराज और इन्हिराफ गुमराही के दरवाजे खोलने वाली थी, वो दो बुनियादी चीजें हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। यही अहले हदीस की दावत के बुनियादी उसूल हैं। अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और दोनों के साथ इताअत के फेल अमर को मुस्तकिलन लाया गया, जबकि उलिल अमर वाला अलग से अतफ किया गया इसी पर, व उलिल अम्र मिनकुम। पता चला कि कुरान और हदीस को, अल्लाह के फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हमारे मनहज में, हमारे मसलक में, सल्फ़े सालिन के नहज में जो अहमियत हासिल है, जो असासियत हासिल है, जो गहराई हासिल है, वो किसी और चीज को नहीं है। जो लोग इन चीजों के कारबंद रहे तारीखी तौर पर, अगर हम पहली आयत कुरान, पहली वाहे समा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर के वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह आखिरी आयत के नुज़ूल तक, और मक्का की इब्तिदाई जिंदगी से कैफ़ कान बदउल वही अला रसूलिल्लाह से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत तक, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद। अरफात के मैदान में कुरानी आयत के नुज़ूल, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना में इस्लाम की जो हयात कज़ाई मुतशक्किल और मुतरक्किब पाई, वो इन्हीं फरमुदात इलाही, वाहे आसमानी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से इबारत थी। और इसी पर दीन मुकम्मल हो गया, इसी पर दीन मुकम्मल हो गया, क्योंकि अरफात के दिन ऐलान कराया गया, आज के दिन तुम पर मैंने अपनी नियामतों का इत्माम किया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया, और इस्लाम से ही मैं बतौर दीन तुमसे राजी हुआ। इमाम मालिक 179 में उनकी वफात हुई, और इस आयत कुरानी को देख करके, पढ़ करके उन्होंने फरमाया, माशर के दिन की तरफ उम्मत की तवज्जो दिला करके, फमा कान यौमइज़िन दीना फहुव अल-यौम दीन वमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फलन यकुन अल-यौम दीना। जो उस दिन अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर जो दीन करार पा चुका था, वही इमाम मालिक के जमाने में भी दीन हो सकता है, और जो उस दिन दीन नहीं था, वो इमाम मालिक के जमाने में भी दीन नहीं हो सकता। और मैं हाँ या ना में आपसे जवाब चाहता हूं, आप बताइए, जो अरफात के मैदान में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के नुज़ूल के वक्त जो दीन मुकम्मल हो चुका था, खैरुल कुरून के 3 जमानों में जिस पर अमल था, और इमाम मालिक ने जिस पर यह कह करके मुहर लगा दी, जो उस दिन दीन था वही आज भी दीन होगा, जो उस दिन दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं होगा। तो क्या आज 1447 में अरफात के दीन के बगैर नई चीजें, ईजाद करदा चीजें, दीन के नाम पर नई बनावटें दीन का हिस्सा हो सकती है? क्या हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती है। और यही फर्क है हम में और दूसरों में। दूसरों ने दरवाजे खुले रखे, नारे तो खूब लगाए अकीदे खत्म नबूवत के,
لیکن اطاعت کے لیے امت کے افراد کو ایسے مقام پر کھڑا کیا کہ ان کے آگے دیکھنا انہیں گوارا نہ ہوا، بلکہ ان کی نسبتیں بھی انہی شخصیات کی طرف ہو گئی، اور اس کے بعد یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ آج یہ اہل الحدیث آئے پانچواں فرقہ بن کر کے، پانچواں مذہب بن کر کے، پانچواں مذہب بن کر کے، جو خود اس نہج سے، اس صراط مستقیم سے، اس راستے سے آراء اور رجال کی بنیاد پر بٹ گئے، وہ اصل والوں کو الزام دیتے ہیں یہ افتراق فرقہ بندی کے ذمہ دار ہے۔ اور یہ قرآن کا مطالعہ کرنے سے، سابقہ انبیاء کی دعوتوں کا مطالعہ کرنے سے، اور اس وقت کے طواغیت کو عملی طور سامنے لانے سے یہ پتہ چلا کہ انسانی تاریخ کا یہ کڑوا سچ ہے کہ فساد کو اصلاح کہا گیا اور اصلاح کو فساد کہا گیا، مصلح کو مفسد کہا گیا اور مفسد کو مصلح قرار دیا گیا۔ جو امن کی بات کرتے تھے انہیں کہا گیا دہشت گرد، اور جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ امن کے نوبل انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں، وہ امن کے دعوے دار۔ یہی سب ہو رہا ہے، یہی سب ہو رہا ہے۔ ایک کہنے والے سے کہا گیا بھائی مسئلے کی بنیاد ایک فقہی کتاب پر ہے، یہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی، عمل کس پر ہوگا؟ دیکھیے تقلید جامد نے عقل، آنکھوں پر تو پردہ بٹھا ہی دیا تھا، عقل پر بھی کس قدر پردہ بٹھا دیا۔ کہنے لگے 6 صدی ہجری کی لکھی گئی کتاب کا مسئلہ ہمیں بھائی بنوان ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب میں لکھا ہے، یا تو وہ ادھر سے بدل جائے، 6 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب سے بدل جائے تو ہم بدلیں گے، اور اگر وہاں نہیں بدلے گا تو ہم بھی بدلیں گے نہیں۔ اور یہ بول گیا کہ 6 صدی ہجری میں لکھی گئی فقہ کتاب سے بھی آغاز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے فرمودات ارشاد ہو چکے تھے، امت کو دیے جا چکے تھے، اور آج الزام دیا جا رہا ہے یہ کچھ نیا لا رہے ہیں، یہ کچھ نیا لا رہے ہیں، یہ نیا دین بتا رہے ہیں۔ یہ قال اللہ پرانا ہی ہے، علیکم بالعتیق، یہ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، جو قرآن و حدیث میں پہلے سے ہی آ گیا وہ تمہارے لئے کافی ہے، اب اسی کی اتباع کرو، ابتدا مت کرو 6، 7، 8ویں صدی ہجری کی کتابوں سے، خیر القرون کے زمانے سے ہٹ کر کے نئے آسمان میں اور نئے امصار میں، نئے شہروں میں، نئے دیہات میں، نئے بستیوں میں دین کے نام پر ایجاد کردہ معاملات سے اجتناب کر کے بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اس زمانے کی طرف، اس غربت والے زمانے کی طرف، اس اسلام کے ابتدائی آغاز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جو فرمودات وہاں صادر ہوئے، اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے کہ آج 1447 کے لیے بھی حضرت امام مالک نسخہ دے گئے، لَن يَصْلُوهَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُوهَا بِهِ أَوَّلُوهَا، جس نسخے سے ابو بکر کو ہدایت ملی وہی نسخہ 1447 میں بھی کارگر ہوگا تو اصلاح ملے گی۔ جس نسخے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی نسخے سے آج کا عبد الرحمن، آج کا محمد طلحہ، آج کا محمد رمضان، آج کا ولی محمد، آج بھی اسی نسخے سے جنت کا وارث بن سکتا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہی پرانا نسخہ
वही पुराना नुस्खा आजमाना है। दीन के मामले में मेरे भाइयों, बुजुर्गों और खवातीन इस्लाम, अहले हदीसों की असास कर्न अव्वल, कर्न सानी, कर्न सालिस की तरफ और रुजू करोगे तो वहां प्योर मिलेगा, वहां असल मिलेगा, वहां मिलावट के बगैर मिलेगा। लेकिन चौथी सदी में देखोगे, पांचवी सदी में देखोगे, छठी सदी में देखोगे, सातवीं सदी में देखोगे तो वहां पर कुछ न कुछ मिलावट नजर आएगी। मैंने एक दिन कॉलेज के तलबा के ग्रुप को सोनमर्ग कश्मीर की खूबसूरत इलाका है जहां से पानी के आबशारे, जहां से पानी के साफ और शफाफ चश्मे फूटते हैं, मैं आप सबको वहां आने की दावत देता हूं। वो देखिए, मैं सयाहत का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन कश्मीर देखने की आपको दावत देता हूं। जब मैंने उन बच्चों को वहां चश्मे के सामने बिठाया और उनको बताया पानी पियो, सारे पीने लग गए। मैंने कहा, और ये पानी जब आगे बढ़ता है तो ये दरिया जहलम में मिल जाता है। अगर श्रीनगर के शहर के बीच में बहते दरिया जहलम के मुतालिक मैं आपको पूछूं कि उसका पानी पियो तो क्या पियोगे या नहीं पियोगे? कहने लगे नहीं पिएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि उसमें मिलावट है, उसमें गदलाहट है। मैंने कहा ये क्यों पिया, वो क्यों नहीं पिया? क्या ये प्योर है और उसमें मिलावट है? मैंने कहा ये क्यों प्योर है और उसमें क्यों मिलावट है? कहने लगे ये अपने सर चश्मे से, जहां से चश्मा फूटता है उसके करीब है, अभी इसके साथ कोई चीज मिली हुई नहीं है। और लाल चौक तक पहुंचते पहुंचते उसके साथ बहुत गर्दा भी, फौजला भी और इधर उधर की चीजें भी उसके साथ मिल जाती है, तो वो खालिस नहीं रहता। मैंने बताया यही हमारी दावत है, हम यही बताते हैं, हमारा मिशन यही है कि तुम दावत वो लो जो करने अव्वल में ज़मानी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में जो मक्का और मदीना से निकली, और मकानी लिहाज से जो दावत मक्का शहर से और मदीना के मुकद्दस शहरों से जो दावत निकली, तो वो वहां प्योर है, उस जमाने में प्योर है, उस जमाने में ओरिजिनल है, उस जमाने में मिलावट के बगैर है। लेकिन जब ये बगदाद से, खुरासान से और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, कूफा की बस्तियों से, बसरा के देहातों से गुजरते हुए हमारे इलाकों में पहुंची तो रास्ते में बहुत मिलावट हो गई। हमारे यार दोस्तों उसी लोकल एडिशन पर इक्तिफा कर बैठे। हमने कहा नहीं, उधर ही जाओ जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। भला ये फरमान कहने की क्या जरूरत थी? बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, बेहतरीन जमाना मेरे सहाबा का जमाना, बेहतरीन जमाना सहाबा को देखने वालों का जमाना। ये वो जमाने थे जब हर कोई बोलता था काल अल्लाह, ये वो जमाने थे जब हर कोई बोलता था काल रसूलुल्लाह। अगर कोई बोलता भी था, जैसा अब्दुल वकील साहब ने अभी इशारा किया, तो उसको कहते थे इजाल अरायता बिल यमन। मक्का और मदीना का ये माहौल नहीं था। ये बस कूबा की मस्जिद में बुजुर्ग उठता था, वो कहता था कंकरियों पर 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, तो ये वहां का मिजाज था, ये मक्का और मदीना का मिजाज नहीं था। और मक्का और मदीना के रासिख उलमा अहलुल हदीस उन्हें कहा करते थे यहां काल अल्लाह चलता है, यहां काल रसूलुल्लाह चलता है। और जो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह के मुकाबिल में अपनी बात कहेगा, तो मुस्नद अहमद में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, फरमाया यूशिकु अन तंजिल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु लकुम क़ाल रसूलुल्लाह व तक़ूलुना क़ाल अबू बकर व उमर। हम तो कहते हैं काल अल्लाह और काल रसूल, हमें खौफ है, हमें अंदेशा है, आसमान तुम पर पत्थरों की बारिश न बरसा दे, पत्थरों के अजाब से तुम्हें तबाह और बर्बाद न कर दे। क्यों तुम काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह के मुकाबले में दूसरों के अक़वाल पेश करते हो? अहलुल हदीस ने इसी दावत को
कायम किया। मक्का और मदीना के साफ और शफाफ सरचश्मे से निकलने वाला वही का पानी, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कलिमात में यूं पेश किया, मसलु मा बअसनिल्लाहु बिही मिनल इल्मि वल हुदा कमसल गैस असाब अर्दा। मिसाल है उस इल्म की, उस हिदायत की जिसे देख करके अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो इल्म और हिदायत, उसको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के साथ तशबीह दी कि ये बरसी किसी जमीन पर, फिर 3 जमीनों का हाल है। मुझे वो वाक़या, वो हदीस यहां पर बयान नहीं करनी है, लेकिन मैं कहता हूं कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने इसे पानी से, इसे बारिश से तशबीह दी। और अल्लाह फरमाता है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया। मेरे भाइयों, मक्का और मदीना के उन मुकद्दस शहरों से और खैरुल कुरून के उन मुकद्दस जमानों से जो दावत निकली, आज भी हम 1447 में छोटी चार मीनार, अब बड़ी है ना, अब बड़ी है, छोटी चार मीनार में भी हम आज भी वही नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं जो मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को पढ़ा, सहाबा को पढ़ाए, साथ में नसीहत की, वसल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली। इसी एक नुक्ते को बतौर मिसाल लिया जाए। काश ये उम्मत सवा अरब मुसलमान आज भी वसल्लो कमा रायतुमूनी उसल्ली के पेश नजर अपनी नमाज पढ़े, अपने नमाजों को दुरुस्त हो। अल्लाह की कसम, उम्मत की सफे दुरुस्त हो जाएंगी, उम्मत की वहदत कायम हो जाएगी। लेकिन लोगों ने तो कहा हम मोहम्मद से इश्क करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, लेकिन तासर रसूल वअंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ल अम्र फी ज़मानी बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ। अगर तुम मोहब्बत के दावे में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, पर तुम इस मोहब्बत के इम्तिहान पर खरा उतरते, और वो मोहब्बत का इम्तिहान इत्तिबा से होकर गुजरता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, जो नमाज सहाबा को पढ़ाई, वही नमाज आज भी अपने अंदर ये इस्तिताअत रखती है कि वो सारी उम्मत को जोड़ दे। लेकिन उम्मत ये तजर्बा तो करे कि हम वही नमाज पढ़ेंगे, उम्मत ये तजर्बा तो करे हम वही नमाज पढ़ करके दिखाएंगे। हमने तो हज को भी नहीं बख्शा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जहां दीन मुकम्मल हुआ, कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 तारीख को मिना में ऊँटनी की पीठ पर सवार होकर उम्मत को खिताब किया और उसमें फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम फलअल्ली ला अलकाकुम बाद आमिकुम हाज़ा। ए मेरे उम्मतियों, मुझसे हज के तरीके ले लो, शायद कि मैं आइंदा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। तो उस हज में, अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी, काश ये उम्मत आज अरफात में ही कम से कम उस वहदत का, उस इत्तिबा का वो मुजाहरा कर दे, ये मुत्तहिद हो जाए। लेकिन बात बात की बोलियां बोलने वाले वहां पर भी उठ जाते हैं, और वहां से जहां अल्लाह ने बादशाहों का लिबास उतरवा दिया, अब उबाद का लिबास उतरवा दिया और मुजावर का लिबास उतार दिया, सबको कहा वो लिबास पहन कर जाओ जो लिबास पहनकर कब्र में उतरो, सफेद चादर और सिफत, ताकि तुम्हारी वहदत, ताकि तुम कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब का अमली मुजाहरा दिखे। सफेद चादरें तो हमने पढ़ ली, पहन ली, लेकिन वो नमाज जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में पढ़ी, ये उम्मत आज वो नमाज अपने इलाकाई रस्मों, खानदानी रिवाजों, अइम्मा की आंधी तकलीद में आज भी पढ़ने की रवादार नहीं है। हमारे असलाफ ने,
हमारे बुजुर्गों ने शुरू से ही दौरे रिसालत इमाम से ही वो रास्ता चुना जो सही इस्लाम का था, सच्चे इस्लाम का था, जिसकी बुनियाद तौहीद पर थी, जिसकी बुनियाद इल्म पर थी, जिसकी बुनियाद काल अल्लाह पर थी, जिसकी बुनियाद काल रसूलुल्लाह पर थी, जिसकी बुनियाद सहाबा के फाहम पर थी, जिसकी बुनियाद किताब और सुन्नत के नुसूस को सहाबा के फाहम के मुताबिक समझने पर थी। तब जाकर के वो सहाबा एक छोटी सी मुद्दत में अक़वाम आलम पर गालिब आ गए। लेकिन सवा का अरब ये क्यों गुफान का गुफा साहिल बन गए? इसलिए कि ये उस असल सरचश्मे से कट गए, इन्होंने गंदा पानी पीना शुरू कर दिया, तो जिसमें सेहत और तवानाई कहां रहेगी? काश ये वही प्योर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सुने, सुनाए, माने, अमलाए और अपनी जिंदगी में दाखिल कर दें। तरह तरह के इख्तिलाफात, तरह तरह की लड़ाइयां, तरह तरह की हद तो यह है कि इस तकलीद की अंधी रविश की वजह से उम्मत का एक तबका अगयार को हमारे शरई मसाइल और आइली निजाम पर, कानून साजी पर मजबूर हो गया कि वो कानून साजी करे, क्योंकि तकलीद की अंधी गहराइयों ने, ज़ुल्मतों ने आइली निजाम में ऐसी दीन की मुखालिफ हरकत और सकनात की कि गैर कौमों को भी उसमें हुकूक निस्वा की पामाली नजर आई और वो अपनी पार्लियामेंटों में कानून साजी करते हुए नजर आई। ये मौका दिया किसने? ये रोज़े सिया दिखलाया किसने? ये उस तरीकेकार ने दिखलाया जो अकीदा खत्म नबूवत के दावेदार तो बनते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर पूरा उतरने की साय और कोशिश नहीं करते। हमें दीन ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हमें कुरान ने फरमाया था वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सबल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह साहब को आप ऐलान कर दीजिए मेरी जो राह है यही सिरात मुस्तकीम है, सीधी राह है जो सीधा जन्नत को जाती है। और हां, इसके दाएं बाएं छोटी छोटी पगडंडियां हैं। बाज़ रिवायतों में आया अला कुल्ली सबील मिनहा शैतान, उनमें से हर पगडंडी पर एक शैतान खड़ा है जो दाई का लिबास पहन करके, इससे बड़ा आलमिया क्या होगा? और लोग वो कहते हैं हमें मौलवियों ने खराब किया, वो कहते हैं हमें दाइयों ने, हम तो दीन बादार बनते, लेकिन कोई मौलवी आता है वो कोई बात कर देता है, वो दूसरा आता है वो दूसरी बात कहता है। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, अल्लाह ने आपको फाहम दिया है। आप मार्केट में सोना खरीदने जाते हैं तो सोना क्या आप सोना परखे बगैर खरीद लेते हैं? आप दवाई खरीदते हैं क्या दवाई की दुरुस्तगी और मेयार और क्वालिटी जांचे बगैर आप खरीद लेते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्या डॉक्टर को परखे बगैर आप अपने बदन का इलाज शुरू कर देते हैं? आप बच्चों की शादी में दुकानों से कपड़े खरीदते हैं क्या आप नकली माल खरीदते हैं? मदीना के बाजारों में तो शेख अब्दुल अज़ीज़ अच्छी तरह जानते होंगे, उन बाजारों में लिखा होता है, उन दुकानों पर लिखा होता है इहज़र तक़लीद। जो आप में से जानते होंगे वो वहां देख लेंगे, उसका मतलब होता है नकली माल से बचो। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? क्या ये सही है गलत है? मेरी याददाश्त सही है? वहां लिखा होता है दुकानों पर इहज़र तक़लीद, नकली माल से बचो। और हम इसी पर दीन का चूरन बेचते हैं, हम इसी पर दीन का चूरन बेचते हैं। सोना खरीदेंगे प्योर, दवाई लाएंगे प्योर, घर का मटीरियल लाएंगे प्योर, उसमें तो आपको परेशानी नहीं होती है। मार्केट का धोखेबाज मन गशना फलैसा मिन्ना, वो आपको धोखा नहीं देता। वहां आप तहकीक करते हैं, वहां आप तसब्बुत करते हैं, लेकिन ये दीन का मामला आपने इतना हल्के कैसे लिया है? कोई पगड़ी पहन ले, दाढ़ी लंबी कर दे, पजामे से ऊपर, टखने से ऊपर पजामा बांधना शुरू कर दे और आप बैठे उसको दीन के फतवे पूछ ले।
और अजीब अलमिया है, अजीब अलमिया है इस उम्मत का, जो टखनों से ऊपर पजामा रखता है, दाढ़ी लंबी करता है, उसको क्या बोला जाता है? मौलवी साहब, है ना? सच्ची बात है या नहीं है? क्या बोला जाता है? ये मौलवी की तारीफ नहीं है, ये शरीयत में मुसलमान की तारीफ है। ये दाढ़ी लंबी करना आम मुसलमान को, हर मुसलमान को इसका हुक्म है। कुरान ने शरीयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में 5 किस्म के अहकाम आए। वफ़िरुल्लिहा, आफुल्लिहा, अरखुल्लिहा, अर्जुल्लिहा। इमाम नववी ने कहा कुल्लुहा तदुल अला तरकिहा अला हालिहा। ये तमाम 5 हुक्म दलालत करते हैं दाढ़ी अपने हाल पर छोड़े, और हम समझते हैं दाढ़ी मौलवी सामने रखी है। जब हमने दाढ़ी को मौलवी की पहचान बनाया तो हमने ये फलसफा इजाद कर दिया कि दाढ़ी के बगैर भी हम मुकम्मल मुसलमान हैं, और फिर दाढ़ी रखे हुए से हम मसला पूछते हैं, ये जाने बगैर कि ये मुस्तनद मौसूक आलिम है, ये उनमें से है जिनके मतलब कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम अहले इल्म से पूछो, अहले इल्म से उनकी राय नहीं, अहले इल्म से उनका ख्याल नहीं, अहले इल्म से इल्म के मुतालिक, अहले इल्म से इल्म के मुतालिक पूछो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है, वो मौसूक उलमा से जुड़े, वो मौसूक उलमा से जुड़े, वो मौसूक उलमा से जो है इल्म हासिल करें, दीन की राहबरी और रहनुमाई हासिल करें। अगर वो उलमाए हक और उलमाए सू में पहचान न कर सके तो उन्हें यह पता लगने में बहुत देर हो जाएगी कि सिरात मुस्तकीम की राह पर कौन दाई बुलाता है। और अला कुल जो दाएं बाएं बकौल इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने फरमाया खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और फरमाया व अन्नहा हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, यही सीधी राह है, इसी राह पर चलो। वला और दाएं तरफ वह खत्ता अन यमीनी खुतूता वह अन शिमाली खुतूता, दाएं भी खत खींचे बाएं भी खत खींचे, और फरमाया हाज़ी सुबल, ये पगडंडियां हैं जो उम्मत को तोड़ती हैं, उम्मत को जोड़ती नहीं है। एक अलविया है इस जमाने का, तौहीद की बात मत करो, तौहीद से कटते हैं लोग। सुन्नत की बात मत करो, इससे इख्तिलाफ उठेगा। मेरे भाइयों, मैं गारंटी देता हूं, सुन्नत मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जनूब में नाफिज करके दिखाओ तो लोग एक हो जाएंगे। लेकिन बिदअत हर 300 किलोमीटर के बाद बदलती है। इमाम अबुल मुज़फ़्फ़र अस्सनआनी ने अल इंतिसार li अस्हाबिल हदीस में लिखा और खूब लिखा कि अगर तुम अहलुल हदीस के मुख्तलिफ तबक़ात और उनके मुख्तलिफ मुल्कों और उनके मुख्तलिफ सनो सालों में और करने अव्वल, करने दूम, करने सोम, अरब, अजम, सिया फाम, सफेद फाम, अहलुल हदीस को देखो दुनिया के किसी भी कोने में, तजिदहुम अला नमतिन वाहिद व अला वतीरतिन वाहिदा। तुम उन्हें एक ढंग की बात, अकीदे में एक सोच, अकीदे में एक बयान, सारे कहेंगे अल ईमानु यज़ीदु व यनक़ुस, सारे इस्तिवाल अर्श के कायल होंगे, एक बात होगी, अफ्रीका का आलिम हो, यूरोप का आलिम हो, बरसगीर का आलिम हो, जापान का आलिम हो, तजिदहुम अला नमतिन वाहिद व अला वतीरतिन वाहिदा, वो एक ढंग पर बोलेंगे, एक तरीके पर बोलेंगे, एक ही तरह की उनकी रहबरी और रहनुमाई होगी। फरमाते हैं चाहे वो पहली सदी के हों, दूसरी सदी के हों, चाहे वो सफेद फाम हो, चाहे वो स्याह फाम हो, फरमाया ये अकेला, वो ये यकजहती उनकी सोच में, उनके अकायद में, उनके आमाल में, फहाज़ा अवरसहुम अल-इतिलाफ वल इत्तिफाक, इसने उनके दिलों को जोड़ दिया। ये कहते हैं हमें इसकी बात मत करो, इसे टूट जाते हैं। इमाम अबुल मुज़फ़्फ़र समानी कहते हैं ये कुरान और सुन्नत वाला नुस्खा ये जोड़ने वाला है, ये तोड़ने वाला नहीं है। क्यों? आगे उन्होंने अरब अजम और पहली और आखिरी सदियों में लोगों के एक नजरिए, एक अकीदे, एक तर्ज अमल, एक मनहज की बात की दलील बताई। कहा वो क्यों एक है, क्यों एक है? फिर फरमाया जवाब खुद ही, लिअन्ना मस्दर तलक़ीहिम वाहिद। बेंगलोर में अब्दुल मोहसिन, अब्दुल हसीब, अब्दुल वकील, तारिक सौदागर
और हमारे जो नए माशाल्लाह हमारे सज्जाद एजाज साहब और इस तरह के नए बहुत अच्छे अच्छे खतीब देखे, अच्छे अच्छे इमाम देखे, ये सारे दीन की बात एक ही जगह से लेते हैं। लिअन्न मसदर तलक्कीहिम वाहिद, उम्मत क्या ये तबका, अहलुल हदीस का ये तबका अपने दीन के मामले में एक ही सरचश्मे की तरफ रुजू करता है, वो एक सरचश्मा उनके दिलों को जोड़ देता है। और फिर उसके बाद खुद फरमाते हैं इसके बरखिलाफ जब तुम अहलुल बिदा को देखोगे, अहलुल बिदा एक ही शहर के, एक ही इलाके के, एक ही जमाने के, एक ही मुल्क के देखेंगे आपस में उनकी बात नहीं मिलती, उनके दिल नहीं मिलते, उनके नजरियात, उनके मकालात, उनके आरा एक दूसरे से नहीं मिलते। मैंने गौर किया तो नतीजे पर पहुंचा, इसलिए कि इन अहले बिदा, अहले कलाम, इनकी बातों में ये जो अदम तवाफुक है, ये तजाद है, ये नतीजा है इनके सरचश्मे रहबरी का। क्यों? लिअन्न मसदर तलक्कीहिमुल अक्ल, इसलिए कि ये अपने दीन की बात अक्ल से लेते हैं, अक्ल से लेते हैं, इसलिए कि अपने दीन की बात अक्ल से लेते हैं। नतीजा वह अक्ल हाजा यख्तलिफ अन अक्ल हाजा, वह अक्ल हाजा यख्तलिफ अन अक्ल हाजा, इसकी अक्ल से मुख्तलिफ, और इसकी अक्ल उसकी अक्ल से मुख्तलिफ। अक्लें जब मुख्तलिफ होंगी, रायें भी मुख्तलिफ, कयासात भी मुख्तलिफ, इज्तिहादात भी मुख्तलिफ, और जब मुख्तलिफ कयासों, मुख्तलिफ रायों, मुख्तलिफ मकालात पर लोग अमल करेंगे तो वो बटेंगे, वो तकसीम होंगे, या वो मुत्तहिद होंगे, या वो मिलेंगे। और फिर कहते हैं सुन्नत आलमगीर है, अकीदा आलमगीर है, इस्लाम आलमगीर है, और बिदत आलमगीर नहीं है। बिदत इलाकाई है। कश्मीर में जो बिदत है बेंगलोर में वो नहीं होगी, बेंगलोर में जो बिदत होगी मुमकिन है वो कलकत्ता में ना हो, और कलकत्ता में जो होगी वो बुखारा में नहीं होगी। और यही दलील है कि वो अपने मसदर से, अपने सरचश्मे से, वह मनहज अहले हदीस के उसूल से हटा हुआ तरीकेकार है, इसीलिए वो रास्ते में ही कट जाता है। शहद अगर असली हो तो उंगली निकाल करके वो धार शहद के साथ मिली रहेगी, लेकिन जब मिलावटी शहद आप उठाओगे तो वो आधा ही कट जाएगा, वो आधा ही कट जाएगा। इसी तरह बिदअत अपने लोगों को काट देती है, वो उनको मुंतशिर करती है, वो इफ्तिराक का शिकार करती है। लेकिन किताब और सुन्नत का मनहज, सल्फ़े सालिहीन का ये मनहज, ये लोगों को जोड़ता है, और यही सबसे बड़ी अलामत और दलील है कि इसके पीछे कुरान और सुन्नत की अजमत खड़ी है। और ये कुरान और सुन्नत की अजमत और कुरान और सुन्नत की हक्कानियत इस मनहज को मजीद इस्तेहकाम बख्शती है। और आखिर पर मैं इस सवाल पर अपनी बात खत्म करता हूं, जो जमात इतना अच्छा अकीदा रखती हो, जो जमात इतना अजीम मनहज रखती हो, जो जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम आजम समझ करके कदम कदम पर उनकी इत्तिबा करती हो, क्या वो जमात आज बचनी चाहिए? क्या वो जमात तकसीम होनी चाहिए? क्या वो जमात अमल के लिहाज से कमज़ोर होनी चाहिए? क्या वो जमात इल्म के एतबार से कमज़ोर होनी चाहिए? इसलिए सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस मिशन को, जैसा कि अब्दुल हसीब भी साहब भी आखिर पर आपको ये गुजारिश करते गए कि इस मिशन को संभालना है, इस मनहज को संभालना है, और इसको उन नस्लों तक पहुँचाना है, हमदर्दी के साथ, दिलचस्पी के साथ, जो अभी तक इस खैर से महरूम है, उनको भी आशना करना है इस ईमान से, इस अखलाक से, इस किरदार से, इस मनहज से। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, जो हक था उस पर हमें कायम रखे, जो गलती हुई अल्लाह ताला से दरगुजर फरमाए, और इस इज्तिमा को अल्लाह ताला कामयाब और कामरान करे, और इसमें जितने भी हाजिरीन हैं उनको अल्लाह ताला अपने इनामात और एहसानात से नवाजे, और जो इसके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो इसके लिए अखराजात कर रहे हैं, जो इसके लिए इल्मी अपने लेक्चर्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को भी अपने दरबार में कबूल करे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को जोड़ दे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को मनहज हक पर जमा कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रब्बुर रऊफ़ुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।